آج غالب اکیڈمی میں ایک قدم فاؤنڈیشن نے اردو کے اعزاز و اکرام جو اساتذہ اکرام تھے ان تمام لوگوں کو ایک ایوارڈ دینے کا پروگرام بنایا، جس میں تمام اساتذہ اکرام یہاں پر آئے اور موجود ہوں گے اور ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک قدم فاؤنڈیشن نے اردو کے جو اہتمام اور اردو کے لیے جو تہذیب و تمیز اردو کی جو قائم رکھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں ان کو کب تک قائم رکھیں گے اردو کو، اور جو تمام یہاں کے فاؤنڈیشن کے کمیٹی کے تمام حضرات ہیں وہ کب تک اس کام کے اندر لگے رہیں گے۔ اسد آزاد کلین آزاد چینل سے بنانے کے بعد میں وہ کام ہو جاتا ہے کہ اردو اسکولوں سے کے ذریعے لوگ گھر تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اردو ایک لینگویج ہے، یہ مادری زبان ہے، یہ ہمارے اظہار کا ذریعہ، ہمارے جذبات، ہمارے مسائل، ہمارے وسائل اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ فنا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کس کے طریقے سے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، معاملہ سیاسی بن جائے گا، لیکن تعلق کیونکہ ہماری زبان، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب سے ہے، اس لیے میں اس بات کو کہنے کو مجبور ہوں کہ آج وہ لوگ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جو نہ صرف یہ کہ اردو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو اسکولوں میں آج اردو پڑھا رہی ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میں اینگلو عربک اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ ہمارے زمانے میں جو ہمارے ٹیچر تھے اردو کے، ان کی جو زینت تھی، ہماری زبان کی زینت تھی، ہمارے تعلقات کی زینت تھی، ہمارے وسائل کی کاروبار کی زینت تھی، اس کاروباری زینت کو، اس وسائل کی زینت کو، کلچر کی تہذیب کی علامت کو، اس کو قائم رہنا ہے، اس کو بچانا ہے اور اس کو آگے فروغ دینا ہے۔ یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سیاست کا شکار ہو گئے ہیں، ہم سیاست کا شکار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنی تہذیب کو بچانا ہے۔ اردو کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے، اور جس سماج کی، جس قوم کی تہذیب بھی مٹ جاتی ہے تو اس سماج کے پاس کیا بچتا ہے۔ بچانا دوسرا موضوع ہے، اور اس تہذیب کو بچانے کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا جو بیس ہے وہ ہماری زبان کی پہچان ہے، اور وہ اردو زبان جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جڑی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے ہم پوری تاریخ کی وکالت کر سکتے ہیں، پوری تاریخ کے دلائل دے سکتے ہیں ہم۔ اس لیے ہمیں اردو کو بچانے کا کام کرنا چاہیے۔ آج سے میں عظیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اردو بچاؤ تحریک کا آج سے آغاز ہونا چاہیے، اور یہ سب فاؤنڈر ہیں اور ہم پیچھے چلیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شفیع دہلوی صاحب حاضر دلی میں بہت ہے، اردو کی تحریک چلانے والے بہت ہیں، اردو کے نام پہ روٹی سیکنے والے بہت سے ادارے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر عقیل نے، ہمیں شکوہ حکومتوں سے نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے کرنا چاہیے۔ ذرا محنت آپ کرتے ہیں اور ذرا محنت گھروں کے اندر بچوں کے والدین کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ گلستہ بنا سکتی ہے۔ ہماری تہذیب مٹنے والی نہیں ہے، یہ بہت زرخیز تہذیب ہے، یہ بہت مالا مال تہذیب ہے، بڑی قوت ہے اس میں۔ یہ زبان، اس زبان کی قوت گویائی آج بھی ساری دنیا میں بک رہی ہے۔ آج صارفیت کا زمانہ ہے، تو میں ذرا آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے آج ہندوستان کی، وہ ساری دنیا میں اربوں کا کاروبار کرتی ہے، اور اس کا ایک بہت ہی ناگزیر کمپوننٹ اردو ہے۔ مرکب ہے، ار کے معنی ہارٹ، دل، اور دو سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی تو اردو جو ہندوستان کی زبان ہے، یہ دو دلوں کے اتصال کی زبان ہے۔ ہمارے لیے محبت کا رشتہ اس زبان نے استوار کیا۔ محبت کی رشتے کی استواری میں جو ہماری زبان کا کردار شروع سے رہا ہے، وہ آج تک بھی الحمدللہ باقی ہے، اور اس کو باقی رکھنے میں جو بنیادی رول ادا کیا گیا وہ اساتذہ کا ہے۔ اساتذہ جو اپنی قربانیوں سے، اپنی عمر کے
सरमाए को सर्व करके अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में पोशां रहते हैं, वो अपने आप को इसलिए आमादा करते हैं कि दीवार को बुलंदी अता कर दे और खुद अपने आप को जमीन में गड़ा करके बुनियाद बन जाते हैं। वो बुनियाद का पत्थर होने के बाद दीवार को अजमतें देने वाले उस्ताद, उनको तो भुला दिया जाता है, भुला दिया जाता है। देख कर के कहते हैं फला फला मनसब पर काम। शुक्रिया। असातिज़ा इकराम को जो इनामात से नवाजा गया है, उन सब यहाँ पर वो मौजूद हैं, उन सब को अवार्ड मिला है, उन सब को इनामात मिले गए हैं। कुछ लोगों को, असातिज़ा को शालों से भी नवाजा गया है। अरे एक मिनट रुको यार, इसमें आवाज आ रही है। यस जिनको इनाम मिला उनकी आमद का शुक्रिया, जो इस जलसे में बेलौस शरीक हुए उनका और भी ज़्यादा शुक्रिया। और सबसे आखिर में मैं अर्ज़ ये कर दूं कि इस एक कदम फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने हमें यहाँ मिलने का मौका अता किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वो असातिज़ा इकराम है जिनको नवाजा गया है, अवार्ड दिया गया है एक कदम फाउंडेशन की तरफ से। आपको ये अवार्ड मिला है, आपको कैसा लग रहा है? आप जो उर्दू की आपने तहज़ीब व तमीज़ को कायम रखा है, आप इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए हौसला अफजाई है कि हम आगे भी बच्चों के लिए और कौम के लिए और ख़ासकर बच्चों को उर्दू सिखाना, बताना, उसके लिए ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक कदम फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें इस एजाज़ व इकराम से नवाजा। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारे लिए हौसला अफजाई है कि हम और तहे दिल से उर्दू की खिदमत करें, बच्चों को आगे इस मैदान में लेकर आएँ और उर्दू को और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पहला कदम है और अभी एक तवील सफ़र बाकी है जिसे हमें पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस फाउंडेशन का नाम बहुत अच्छा लगा, एक कदम फाउंडेशन। मैं चाहती हूँ कि ये कदम हमारा आखिरी ना हो बल्कि यहाँ से शुरुआत हो। जी आप। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो फाउंडेशन के लिए हम पहली बार यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा कि हम टीचर्स की यहाँ इस तरह हौसला अफजाई की गई और जिससे एक इंकरेजमेंट मिलता है टीचर्स को कि हम अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उर्दू की तरफ राग़िब करें और बच्चों की बेहतर से बेहतर बुनियाद बनाएं। बहुत अच्छा। शुक्रिया। मेरा नाम फरहान बेग है और मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाफराबाद में बहैसियत लेक्चरर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उर्दू लेक्चरर की। और आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें साल 2022-23 में वो तमाम असातिज़ा जिनका 12वीं क्लास का CBSE का रिज़ल्ट 100% था, उनके एजाज़ में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और उर्दू की तरक्की और तरवीज में ये बहुत बेहतर और अहम कदम है। आज के ज़माने में जहाँ पर ये कहा जाता है कि उर्दू ज़बान मर रही है, उसके लिए कोई खिदमत करने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह इस तरह की दूसरी बातें, वहाँ पर ऐसे इक़दामात काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है। और इस तरह के प्रोग्राम और होते रहेंगे तो उर्दू ज़बान का फ़रोग़ चलता रहेगा। और ये प्रोग्राम इस बात की तायद भी करता है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का जो सिलसिला जारी है पिछली कई सदियों से, वो अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक कदम फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, सदर साहब हैं, मौजूद हैं। सदर साहब, आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है, किस तरीके से आपने ये मैनेज किया और आपके कैसे आया कि जी हम ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को रूए रवा है अजीम अख्तर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका ये ख्याल था कि उर्दू असातिज़ा को उनका सही मुकाम अता होना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। और इसको मुनक़्क़िद करने में सोहेल अख्तर साहब अजीम जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है। सोहेल साहब, आप कैसे सेक्रेटरी हैं, आपने इस प्रोग्राम के जो मेहनत किया है, ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा और आपने ये फर्स्ट टाइम ये पहला प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि अभी स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह इसको इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा भी बहुत काम है। अभी हमने 12वीं क्लास के साथियों को लिए है, इंशाल्लाह अगले साल
और ये हो सकता है इससे पहले 10वीं क्लास के जो हम पढ़ाएंगे उनको भी लेंगे, और छोटे छोटे प्रोग्राम जो हम करते आए हैं पहले भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी टीम जो है वो बहुत माशाल्लाह कमर बस्त है, पक्के हैं, तैयार हैं हर चीज़ से। हमारे सदर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मैं खुद हूँ, इसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो हमें ऊपर से राय मिलती रहेगी इंशाल्लाह वो बहुत से प्रोग्राम जो हम करेंगे स्कूल के लिए करेंगे, असातिज़ा के लिए करेंगे, अपने स्टूडेंट के लिए भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो हमने किया हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक छोटे से मैसेज के ऊपर तमाम लोग यहाँ आ गए, ये इससे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कम से कम यहाँ पे आए, सारे जो वहाँ जो हमने बुलाया था साझा वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उन लोगों को आगे हमें हमारी खैर मकदम ये रही कि बहुत बड़ा कि मुझे खुशी की सबसे बात की रही कि कोई भी साथ यहाँ आए, जो टीचर खड़ी हैं सामने मेरे भी देख रहे हूँ इनको, बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई कि आपने कदम उठाया, मैंने ये कदम उठाया, अब हमारे साथ इंशाल्लाह आप पूरे सहयोग करें, पूरा हमें मतलब हेल्प करें, तो इंशाल्लाह करेंगे। एक प्रोग्राम अभी हमारे फतेहपुरी के प्रिंसिपल साहब कह के गए हैं, हमारे साहब नारायण दत्त साहब मौजूद हैं, जहां पर उर्दू को उन्होंने जिस मुकाम पर ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आइए एक उनसे मुलाकात करते हैं। नारायण दत्त साहब, आप उर्दू के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या मतलब आगे की आपकी स्कीम है? जी, मैं सत्यनारायण जाट, लेक्चरर उर्दू में मेरा जोक व शौक़ 10वीं क्लास से शुरू हुआ था, और मेरे उस्ताद खुश नसीब साहब थे, उनको देख के मेरे अंदर जोश आया कि मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, और आगे बढ़ चुका हूँ। आज मैं एक कदम फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक कदम हम आगे बढ़ा चुके थे और कदम से कदम आगे और बढ़ाते चलेंगे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे हम। जी, धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, और एक कदम फाउंडेशन की जो ये पहला कदम बढ़ाया है उसके लिए आप क्या? देखिए, मेरा नाम अजीम अख्तर है और मैं उर्दू से मुताल्लिक़ हूँ। उर्दू ही का मैंने 10वीं जमात तक उर्दू पढ़ी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है उर्दू की वजह से आया है। मैं उर्दू में सेलेक्ट हुआ था यूपीएससी की वजह से, बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। मैं बेसिकली चाहता था कि उर्दू के जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, जो 10वीं और 12वीं जमात को बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए। होता ये है कि उनको वो तो नज़रअंदाज कर दिया गया है, उन्होंने तो हाशिए में बैठा रखा है। सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई दफ्तर बनता है, उसमें कौन बैठा? प्रोफेसर साहब बैठे हैं। भाई प्रोफेसर भाई, क्या स्कूल का टीचर इस काबिल है कि वो वहाँ बैठ सके? मतलब बेसिकली ये है कि अगर स्कूल टीचर इस काबिल नहीं तो फिर आप उससे स्कूल टीचर बनाए क्यों? उर्दू में हम जानते हैं कि उर्दू को काबिलियत ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेसर हर से आखिर है। हमारे स्कूल के असातिज़ा जो उर्दू पढ़ाते वो भी ज़हीन है, हम उनकी ज़हानत का एतराफ़ कराना चाहते हैं। यही इस प्रोग्राम का मकसद था कि हम उनका एतराफ़ करें कि वो काबिल होगा। ठीक है। आप हर जगह मुशायरों में जहाँ पर उर्दू की तहजीब व तमील होती है, आप वहाँ पर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक कदम फाउंडेशन के ज़हर तमाम जो एजाज़ दिया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सब इसलिए होता हूँ कि मैं तालीम की तहरीक का एक सिपाही हूँ, एक अदना कारकुन हूँ, और जब तक मैं नहीं जाऊँगा, मैंने न तजुर्बा मेरा वसी होगा, ना मुझे वो हिम्मत मिलेगी, ना हौसला मिलेगा। इससे ऐसे प्रोग्राम में आने से मुझे हौसला अफजाई होती है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुझे बुलाते हैं, बहुत मोहब्बत से प्यार से बुलाते हैं, एजाज़ देते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं यहाँ पर। और आज भी मेरे यहाँ पर जो कुछ बात हुई है, ये एक कदम तंजीम का प्रोग्राम, ये पहला कदम है आज के दौर में यहाँ पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए, क्योंकि उर्दू ज़वाल पर जा रही है। उर्दू अकेडमी हो, NCPUL हो, ये जितनी भी तंजीमें यहाँ पर हमारे इदारे, सरकारी इदारे, वो नाकाम साबित हो रहे हैं। उर्दू आज हमारी नज़र नहीं आ रही है। प्रेस वाले, जितना उर्दू प्रेस वाला है, सब परेशान हैं। जितने लोग घरों में वो परेशान हैं, उनको पता नहीं है। बच्चे हैं, हम जो बच्चे हमारे यहाँ जो बड़े लोग उर्दू पढ़ गए, उनके बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे, घरों में उर्दू नहीं है, स्कूलों में उर्दू नहीं है। पूरे स्कूल में जाके आप चेक करके देख लीजिए, उर्दू का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, उर्दू के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जहाँ को 6% जहाँ जिस लैंग्वेज का बच्चा पढ़ेगा, 6% बच्चे, उनके लिए उर्दू का इंतजाम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कोई दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। 28 आज लोगों को, टीचर्स को मैं कहता हूँ, आज के वो टीचर जो हैं वो मुजाहिद हैं, जो इस माहौल में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू सीख के आ रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे के लिए कितनी गुंजाइश है किसी के लिए? आपको टीचर नहीं मिलेंगे आने वाले दौर में अगर हम खामोश बैठे रहे। तो आज की तहरीक जो है ये बात पैदा कर रही है कि हमें उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना है, और आज का प्रोग्राम हमारा उर्दू बचाओ तहरीक शुरू हो रही है। आज से हम इसके साथ हैं। मिशन एजुकेशन पूरी तरह से इसमें अपना ताउन देगा, पूरा तरह साथ देगा। ये तहरीक बननी चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारी तहजीब से वाबस्ता ज़बान है, हमारे कल्चर से वाबस्ता ज़बान है, और हमें अपने कल्चर तहजीब को बचाना है, अपनी ज़बान को पहले बचाना होगा। शुक्रिया।